Assalamualaikum dear students, welcome back to the expository writing series. This is lecture 4 and today we are going to study one of the most important components of academic writing, that is the thesis statement. Whether you are writing an essay or writing a research paper, it is a clear thesis statement which acts as the backbone of your writing. Let's move towards the lecture and see what is a thesis statement. Let's see what is a thesis statement. A thesis statement is a sentence that presents the main argument or claim of your essay. It gives direction to your essay, it tells the reader what to expect, it states your position or opinion on a topic. Thesis statement explains the main or central idea of your essay. It tells the reader exactly what your entire essay is going to be about. You can think of it as the claim or position you are taking, what you are trying to prove, what you are trying to explain, or what you are trying to analyze. Without a thesis statement, your essay will lack direction and the reader won't know what to expect. Thesis statement is usually found at the end of the introduction. In academic writing, especially in expository and argumentative essays, the thesis statement is typically placed at the end of the introductory paragraph. This allows the writer to introduce the topic gradually, provide some background or context, and then present their main point clearly just before the body paragraphs begin. This placement acts as a bridge between the introduction and the body of the essay. And thesis statement also provides the roadmap for the reader. A well-written thesis acts like a GPS or roadmap. It tells the reader what the writer believes or what he is trying to prove, how the writer plans to support that claim, and what the structure of the essay might look like. If the thesis mentions 3 reasons or points, reader can expect each body paragraph to develop one of those. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं. टॉपिक क्या है? क्लाइमेट चेंज. अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट देख लेते हैं. क्लाइमेट चेंज शुड बी एड्रेस्ड इमीडिएटली बिकॉज इट काजेज राइजिंग सी लेवल्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड थ्रेट्स टू फूड सिक्योरिटी. अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो आपके ऐसे का रोड मैप होती है आपके ऐसे के बॉडी पैराग्राफ्स का. तो हम देख लेते हैं कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये किस तरह से हमारे बॉडी पैराग्राफ्स का रोड मैप प्रोवाइड कर रही है. तो इसका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ क्या होगा? राइजिंग सी लेवल्स. सेकंड बॉडी पैराग्राफ क्या होगा? एक्सट्रीम वेदर. एंड द थर्ड बॉडी पैराग्राफ वुड बी अबाउट फूड सिक्योरिटी, कि उसके हम फूड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस रोड मैप अप्रोच ऑल्सो हेल्प्स यू एज द राइटर स्टे फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. अब नेक्स्ट हमारे पास है थीसिस स्टेटमेंट वर्सेस टॉपिक सेंटेंस, कि थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिक सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. लेट्स हैव अ लुक एट इट. जब हमने डिस्कस किया था कि थीसिस स्टेटमेंट इज डेवलप्ड ऑन एसे लेवल एंड टॉपिक सेंटेंस इज डेवलप्ड ऑन पैराग्राफ लेवल. अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? इट इज़ फाउंड इन इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक सेंटेंस इज फाउंड इन बॉडी पैराग्राफ. हमारा जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है. और थीसिस स्टेटमेंट क्या करती है? इट कवर्स होल एसे एंड टॉपिक सेंटेंस कवर्स जस्ट वन पॉइंट. हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो हमारे पूरे एसे के ऊपर फोकस कर रही होती है, और जो हमारा एक टॉपिक सेंटेंस होता है वो हमारे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट को डिस्कस कर रहा होता है. अब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द होल एसे. ऑन द अदर हैंड टॉपिक सेंटेंस सर्व्स एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द paragraph. Let's have a look at why thesis statement is important. A thesis statement is not just a formal requirement, it's the heart of your essay. It gives your writing direction, clarity and strength. Let's break down the 3 key reasons why your thesis statement is essential. First of all, thesis statement keeps your writing focused and unified. A well-written thesis statement keeps your essay on track. It acts as a guiding thread that connects all your paragraphs. Every body paragraph should relate back to your thesis. This keeps your writing coherent and organized. Without a thesis statement, students often go off topic, they include irrelevant ideas, or they repeat often themselves. Let's take an example. If your thesis statement is online learning improves student outcomes through flexible scheduling, personalized instruction and digital tools, then your entire essay must stick to those 3 points. Do not start talking about school uniforms or social media. अगर आपका थीसिस स्टेटमेंट क्लियर है तो आपका ऐसे फोकस रहता है, हर पैराग्राफ उसी सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करता है. थीसिस स्टेटमेंट ऑल्सो हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड योर पोजीशन और पॉइंट ऑफ व्यू. दिस थीसिस टेल्स द रीडर व्हाट यू थिंक अबाउट अ टॉपिक. इट शोज वेदर यू आर एक्सप्लेनिंग, whether you are analyzing or arguing.
and which side you are on if it's an argumentative essay. Thesis statement answers the question what is the writer trying to say or prove. थीसिस स्टेटमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करती है, रीडर को ये समझ आ जाता है कि राइटर किस स्टांस से लिख रहा है. थीसिस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर योर बॉडी पैराग्राफ्स. A thesis acts like a roadmap. It tells the reader what to expect in the essay and in what order. It helps you, the writer, to stay organized while writing each body paragraph. If your thesis has 3 supporting points, then ideally you will have 3 body paragraphs, each focusing on one of those points. थीसिस आपके ऐसे का स्ट्रक्चर सेट करता है. आपको पता होता है कि हर पैराग्राफ में किस टॉपिक को डिस्कस करना है, किस पर बात करनी है. If you get your thesis statement right, the rest of the essay becomes much easier to write. Okay, now let's have a look at types of thesis statement. The type of thesis statement you write depends on the purpose of your essay. Are you explaining something? Are you analyzing something? Or are you making an argument? Let's discuss these 3 types. First one is expository thesis statement, which explains something. Second one is analytical thesis statement, which breaks down the thesis statement into several subtopics. And the last one is argumentative thesis statement, which makes a claim. Okay, let's discuss these types in detail one by one. First one is expository thesis statement. Its main purpose is to inform, to describe, or to explain a topic to the reader in a neutral and objective way. You are not arguing or analyzing, you are just clarifying facts or processes. A clear statement that introduces your subject and outlines what your essay will explain. अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है. टॉपिक हमारे पास क्या है? फोटोसिंथेसिस. थीसिस स्टेटमेंट क्या है हमारी? फोटोसिंथेसिस इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट्स दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू chemical energy for growth. This thesis statement does not argue or analyze. It simply explains a biological process. It clearly explains the topic. It is focused and informative, and it suits an expository. It is a non-argumentative essay. तो ये non-argumentative essay के लिए thesis statement बहुत ही suitable है. एक्सपोजिटरी थीसिस किसी चीज़ को समझाने के लिए लिखी जाती है, ये ओपिनियन या आर्ग्यूमेंट नहीं होता. अब नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल थीसिस स्टेटमेंट. इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इस मेन पर्पज़ इज टू एग्जामिन एंड टू इंटरप्रेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टॉपिक और आइडिया एंड टू एक्सप्लेन हाउ दे वर्क टुगेदर. In this thesis statement, you are analyzing something in detail, often a text, it can be an issue or it can be on any event. It breaks a concept into parts and it discusses the relationship between them. अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है. टॉपिक क्या है? शेक्सपियर्स हैमलेट. शेक्सपियर का ड्रामा है हैमलेट. उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट हमारी है इन हैमलेट शेक्सपियर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ रिवेंज थ्रू द साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स ऑफ द मेन कैरेक्टर. This thesis breaks the play into themes and promises to explore them analytically. It breaks down the play into a specific focus. It sets up an analysis and it is academic and interpretive. Analytical thesis किसी idea या topic को parts में divide करके analyze करती है. And the last one is argumentative thesis statement. इसका main purpose क्या होता है? To argue a specific position or claim and support it with reasons and evidence. You are taking a stance and you will need to persuade the reader. It states an opinion and gives the reasons or points that to support it in the body paragraph. अब यहाँ पे इसके हमारी एग्जांपल है. इसका टॉपिक क्या है? सोशल मीडिया एंड स्टूडेंट्स. और इसकी थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास क्या है वो देखते हैं. सोशल मीडिया नेगेटिवली इम्पैक्ट स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग फोकस, encouraging procrastination and disrupting sleep patterns. This thesis clearly presents a claim and previews the 3 arguments that will follow. इस thesis statement में 3 आर्ग्यूमेंट हमारे पास हैं. फर्स्ट क्या है? रिड्यूसिंग फोकस. ये स्टूडेंट्स के फोकस को रिड्यूस करती है. देन एनकरेज करती है प्रोक्रेस्टिनेशन को और डिसरप्ट करती है उनके स्लीपिंग पैटर्न्स को. तो हम कह सकते हैं कि दिस थीसिस स्टेटमेंट इज स्पेसिफिक. दिस गिव्स 3 पॉइंट्स दैट विल बी डेवलप्ड इन द बॉडी पैराग्राफ्स एंड इट टेक्स अ क्लियर स्टांस. इट इज़ आर्ग्यूएबल. आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू शो करता है और उस पॉइंट को सपोर्ट करने की रीजंस देता है. अब नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग थीसिस कैरेक्टरिस्टिक्स. किस स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो वो हम देख लेते हैं. कि फर्स्ट है स्पेसिफिक. आप लोग की जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए. देन आर्ग्यूएबल, कि वो
आर्ग्यूएबल हो, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जा सके। देन इट शुड बी फोकस्ड, उसे फोकस्ड होना चाहिए। देन इट शुड प्रेजेंट वन क्लियर आइडिया, एक ही सिंगल आइडिया के गिर्द आपकी थीसिस स्टेटमेंट रिवॉल्व करनी चाहिए, जो फर्दर आपके ऐसे में डिवेलप होगा इन द फॉर्म ऑफ बॉडी पैराग्राफ्स। Okay, let's discuss steps to write a good thesis statement. Writing a strong thesis statement is not guesswork, it's a process. And follow these 4 steps to develop a thesis that is clear, focused and effective. अब यहाँ पे हमारे पास 4 steps हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोग एक स्ट्रॉन्ग thesis statement क्राफ्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन क्या है? You have to choose a narrow topic. If your topic is too broad, your thesis will be vague and it would be difficult to support. You have to think small, you have to be specific and you have to be manageable, something you can write about in 3 to 5 paragraphs easily. वो टॉपिक चूज़ करें जो स्पेसिफिक हो, बहुत वाइड टॉपिक पर थीसिस वेग हो जाएगी आपकी। देन यू हैव टू टर्न इट इनटू अ क्वेश्चन, कि आप लोग को जो थीसिस स्टेटमेंट आप लोगों ने क्रिएट की है, टॉपिक जो आपके पास आया है, देन आपने उसको क्वेश्चन में चेंज करना है कि इसके ऊपर क्या बात आप लोग कर सकते हैं, क्या इसमें डिस्कशन हो सकती है। You have to frame your topic as a question which helps you think critically and identify the core of your argument. इसमें यह है कि आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उसको क्वेश्चन की फॉर्म में सोचें आप, उससे आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपने क्या डिस्कस करना है अपने एसे में। थर्ड वन इज़ यू हैव टू आंसर विद अ क्लियर सेंटेंस, योर आंसर विल बिकम योर थीसिस स्टेटमेंट। दिस इज़ वेयर यू टेक अ पोजिशन और मेक अ क्लेम। जो क्वेश्चन आपने बनाया है उसका एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर आंसर में लिखना है आपने, यही आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। And the last one is you have to check for clarity, focus and scope. Ask yourself, is my thesis statement specific? Is it arguable? Is it not just a fact? Can I support this in the body of my essay? थीसिस लिखने के बाद उसे चेक करना है आपने, क्या ये क्लियर है, क्या ये सपोर्ट किया जा सकता है आपके बॉडी पैराग्राफ में, क्या ये एक ही आइडिया पे फोकस्ड है या नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं विच यू हैव टू अवॉइड वाइल राइटिंग अ गुड थीसिस स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है? टू वेग और ब्रॉड। अ थीसिस मस्ट नॉट बी टू जनरल, इट शुड क्लियरली टेल द रीडर व्हाट एंड व्हाई। मतलब आपने जो थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करनी है उसमें क्लैरिटी लैक ना करती हो। ऐसा थीसिस जो सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हो, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, वो फोकस्ड और क्लियर होना भी उसका ज़रूरी है कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्लियर हो और फोकस्ड हो आपके टॉपिक पर जो आपने टॉपिक चूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ factual statement without an argument. A thesis should present an idea that can be argued. It is not something that is simply true for everyone. तो आप लोग की thesis statement ऐसी भी ना हो कि जिसपे डिबेट ना हो सके, जो आप लोग के ऐसे में फर्दर डिस्कस ही ना हो सके। अगर आप लोग आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हो तो उसके लिए आप लोग को आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट क्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग उसमें फैक्ट लिख रहे हो तो वो आप लोग की थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होगी, आपको कोई ना कोई स्टैंस लेनी होती है, उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल देनी होती है। नेक्स्ट है कि मल्टीपल आइडियाज दैट आर अनरिलेटेड इन वन स्टेटमेंट। Trying to say too many things at once makes your thesis statement scattered and it is hard to follow. अब आप लोग को अपनी थीसिस स्टेटमेंट में अनरिलेटेड आइडियाज़ भी बहुत सारे डिस्कस नहीं करने हैं, एक ही सिंगल आइडिया डिस्कस करना है अपनी थीसिस स्टेटमेंट में। फिर ऐसा ना हो ना कि आप लोग के जो थीसिस स्टेटमेंट में उसमें कोई क्लियर टॉपिक ही ना हो, कोई क्लियर डायरेक्शन ही ना हो, आपको पता ही ना हो कि आपने लिखना क्या है, अपने एस्से में बताना क्या है। एक थीसिस स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, अलग अलग आइडियाज़ एक साथ लिखेंगे तो फिर आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है नो आर्ग्यूमेंट और क्लियर पोजीशन। A weak thesis statement lacks a clear opinion or position. The reader should know your perspective. अब ऐसा भी ना हो कि आप लोग का जो थीसिस स्टेटमेंट आप लोग आर्ग्यूमेंटेटिव लिख रहे हो तो आप लोग उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, फिर तो वो इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा ना। आपका टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आप लोग लिख रहे हो तो देन यू हैव टू क्राफ्ट आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट ना। आप लोग को आर्ग्यूमेंट डिस्कस करना होगा, स्टांस देनी होगी। ऐसा ना हो कि आपके थीसिस स्टेटमेंट में आर्ग्यूमेंट ना हो, स्टांस ना हो, तो फिर वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट वही होती है, हम कह सकते हैं कि जिसमें राइटर को ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिखाई देता है, बस इनको देना काफ़ी नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस टास्क है जो मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में दिया गया है। आप लोगों ने करना क्या है, यू हैव टू चूज़ द बेस्ट थीसिस स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या हैं। ऑप्शन ए इज़ वीडियो गेम्स आर प्लेड बाय मैनी टीनेजर्स। ऑप्शन बी इज़
video games can improve strategic thinking but may also lead to social isolation. And the option C is video games exist since 1980s. अब इसमें से आप लोगों ने स्ट्रॉन्गेस्ट थीसिस स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो क्लियर हो, फोकस्ड हो. अब फर्स्ट को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्या है? वीडियो गेम्स आर प्लेड बाय मैनी टीनेजर्स. इसमें जस्ट एक फैक्ट डिस्कस किया गया है. इट मीन्स कि ये फैक्चुअल थीसिस स्टेटमेंट है. अब जो एक थीसिस स्टेटमेंट सिर्फ फैक्चुअल है, इट कैन नॉट बी अ गुड थीसिस स्टेटमेंट. अब अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो उसमें क्या बताया गया है? वीडियो गेम्स एग्जिस्ट सिंस दी 1980s. ये भी हमें एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वीडियो गेम्स जो हैं वो कब से एग्जिस्ट कर रही हैं? सिंस 1980s से एग्जिस्ट कर रही हैं. ये भी फैक्चुअल थीसिस स्टेटमेंट. अब रह गया हमारे पास ऑप्शन बी, तो इसको देख लेते हैं. वीडियो गेम्स कैन इम्प्रूव स्ट्रेटजिक थिंकिंग बट मे ऑल्सो लीड टू सोशल आइसोलेशन. अब इसमें ये आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट है. इसमें पॉइंट जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव है. 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जिस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है. पहला क्या है कि वीडियो गेम्स जो हैं दे इम्प्रूव स्ट्रेटजिक थिंकिंग. ये स्ट्रेटजिक थिंकिंग को इम्प्रूव करते हैं. और दूसरा ही साथ में उसने बताया है कि ये सोशल आइसोलेशन भी काज कर सकती हैं. तो इट मीन्स के इसमें ऐसे 2 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जिन पे आर्ग्यूमेंट आप लोग कर सकते हैं. तो इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट है. ये क्लियर भी बता रहा है, फोकस्ड भी है और आर्ग्यूमेंटेटिव भी है. हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन. ये एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास है. अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और प्रैक्टिस टास्क है. टास्क 2 है, इसको हम देख लेते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की थीसिस स्टेटमेंट हैं. एक तरफ हमारे पास है वीक थीसिस स्टेटमेंट और दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट. अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है? यू हैव टू रीड ईच थीसिस स्टेटमेंट एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वेदर दिस स्टेटमेंट इज टू वेग और फैक्चुअल. इज इट डिस्कसिंग मल्टीपल आइडियाज और इज दिस स्टेटमेंट हैज़ नो आर्ग्यूमेंट, कि उसमें कोई आर्ग्यूमेंट है या फिर वो आर्ग्यूमेंटेबल है या नहीं है. एंड देन यू हैव टू टेल इन द कॉमेंट सेक्शन के आप लोगों ने इसमें बताना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. हमारे पास आइडियाज़ की रेलिवेंसी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये वीकर थीसिस स्टेटमेंट है. अब दूसरी तरफ इसका हम स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट का वर्जन देख लेते हैं. वो क्या है? स्कूल्स शुड मेक स्पोर्ट्स कंपल्सरी बिकॉज दे इम्प्रूव स्टूडेंट डिसिप्लिन, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फिजिकल हेल्थ. अब ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग इसलिए है, ये एक तो क्लियर है, एक तो फोकस्ड है और इसमें सेंट्रल आइडिया भी डिस्कस किया गया है क्लियरली तौर पर. इसको हम कह सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की थीसिस स्टेटमेंट है. इसमें 3 टाइप्स के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए गए हैं जो कि आर्ग्यूमेंटेबल हैं, जो कि 3 बॉडी पैराग्राफ में फर्दर डिस्कस किए जाएंगे. ईच बॉडी पैराग्राफ में ईच आर्ग्यूमेंट को डिस्कस करेगा राइटर. फर्स्ट वो 3 कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं? फर्स्ट है कि स्पोर्ट्स जो हैं अगर स्कूल में कंपल्सरी कर दिए जाएं तो उनका क्या बेनिफिट होगा? दे वुड इम्प्रूव स्टूडेंट डिसिप्लिन. एक तो वो स्टूडेंट की डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेंगे. देन दे वुड इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेंगे. एंड देन दे वुड इम्प्रूव स्टूडेंट्स फिजिकल हेल्थ. वो स्टूडेंट्स की फिजिकल हेल्थ को भी डिस्कस करेंगे. तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट है जो क्लियर है और फोकस्ड है. अब यहाँ पे आप लोग के पास एक और प्रैक्टिस टास्क है. उसमें आप लोगों ने करना क्या है? यू हैव टू चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स and you have to write a clear, arguable and focused thesis for any topic which you will choose from these ones. Now we are moving towards the end of the lecture और अब हमारे पास क्या है? summary है कि what we have learned in today's lecture. Now we are going to review it. आज का टॉपिक हमारा क्या था? थीसिस स्टेटमेंट. कि आप लोगों ने एक गुड थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से आपने ऐसे में क्राफ्ट करनी है, हमने आज वो लर्न किया है. तो थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट इज़ दी एसेस सेंट्रल आइडिया. अब थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो ऐसे का सेंट्रल आइडिया होता है. आप लोग का जो पूरा ऐसे है वो आप लोग की थीसिस स्टेटमेंट में ही डिस्कस किया होता है. आप लोग की जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो आप लोग के पूरे ऐसे के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, आप लोग कह सकते हैं. देन हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की हैं कि थीसिस स्टेटमेंट की 3 मेन टाइप्स हमने देखी हैं. एक्सपोजिटरी,
थीसिस स्टेटमेंट, एनालिटिकल एंड आर्ग्यूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट। अब एक्सपोजिटरी क्या होती है, वो जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। एनालिटिकल क्या होती है, जिसमें आप लोग कुछ भी एनालाइज करते हो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्ड इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव, क्या होती है कि इसमें कोई भी पॉइंट आप लोग डिस्कस करते हो जो आर्ग्यूमेंटेबल हो। एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, यू हैव टू राइट क्लियर, आर्ग्यूएबल एंड फोकस थीसिस स्टेटमेंट। एंड उसमें हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखी विच यू हैव टू अवॉइड वाइल राइटिंग योर थीसिस स्टेटमेंट। तो उसमें क्या था, यू हैव टू अवॉइड यूजिंग वेग स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू अवॉइड यूजिंग फैक्चुअल और ब्रॉडर क्लेम्स। क्या आप लोगों ने वेग स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं करनी, बिल्कुल फैक्चुअल स्टेटमेंट्स नहीं डिस्कस करने और बिल्कुल ब्रॉडर क्लेम्स भी डिस्कस नहीं करने। ब्रॉडर क्लेम्स हैं तो आप लोग को उसको नैरो डाउन करना है, उसको स्पेसिफिक करना है एक दो पॉइंट्स में जो आप लोग के थीसिस स्टेटमेंट में हों और उसको फर्दर आप लोग के बॉडी पैराग्राफ्स में डेवलप हो सके विद क्लैरिटी के साथ।